Hello, welcome back to PTSST class 7. Today I have taken chapter 1 that is related to the civics, democracy and equality. In this chapter we will study about what is democracy, what is equality and how many types of democracy are there and how democracy started in which countries. Now first we want to discuss that what is democracy. Democracy होती क्या है? Democracy consists of two words, demo plus kratos, where demo means people and kratos means rule. It means that rule of the people is called democracy, or the president of America Abraham Lincoln defined democracy as the democracy is rule of people, by the people and for the people. Now the remaining part that is related to democracy and equality and types of democracy we will discuss in the through the book. So let's start from the book. Yes, meaning of democracy. Here meaning of democracy is given in detail and some pictures are given that is related to the democracy started in those countries. Now we will discuss. Democracy means rule of the people. It is a combination of two Greek words, demos which means people and kratos which means rule. American President Abraham Lincoln described democracy as government of people, by the people and for the people. In Mansi society, the managing committee is a mini government. It will be made up of people living in society of the people. It will be elected by the residents of the society, by the people, and it will look after administration of the society for the people. It means that it is told that democracy is consist of two Greek words, where demos means people and kratos means rule. Then American President Abraham Lincoln described democracy as government of the people. जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल बताया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देन मानसी सोसाइटी इज डिस्कस। इसके बाद मानसी की सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार मानसी की सोसाइटी में जो मैनेजिंग कमेटी है वो एक मिनी गवर्नमेंट का काम करती है। नाउ today democracy is the most popular form of government all around the world. When and how did democracy originate? Let's look at the journey of democracy. Now we will discuss how democracy began and what is the journey of the democracy. We will discuss in डिटेल किस प्रकार से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। पिक्चर देख लीजिए आप, देखिए इस पिक्चर में क्या बताया हुआ है। द असेंबली इन द एंशियंट सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। एथेंस की असेंबली बताई गई है कि किस प्रकार से सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है वो एथेंस कंट्री में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद रोमन सीनेट, रोम का जो सीनेट है उसका पिक्चर दिया हुआ है और उसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पहले कैसे स्टार्ट हुआ था। नाउ नेक्स्ट पेज। Yes, now the next picture, that is the feudal system in medieval Europe was characterized by the absence of democratic spirit in governance। किस प्रकार से जो संघीय प्रणाली है मध्यकालीन यूरोप की वो बताई गई है। और फोर्थ पिक्चर में द सिंगिंग ऑफ मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट एवर एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल प्रिवेलिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन। किस प्रकार से मैग्ना कार्टा गाया जा रहा है, यानी कि मैग्ना कार्टा इज ए रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें कुछ रूल्स बताए होते हैं। तो किस प्रकार से उसको सिंग कर रहे हैं और ये सबसे पहला माना जाता है जिसमें अपनी इच्छाओं को बताया गया है कोर्ट में क्राउन के सामने। नाउ द पॉइंट नंबर 1 इज गिवन इन एथेंस the ancient city state of Greece, all the male citizens formed a body called the assembly। मॉडर्न सिटी एथेंस में क्या होता था, सभी सिटीजन्स मिलके एक बॉडी फॉर्म करते थे जिसको असेंबली या सभा कहा जाता था। दैट टुक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द स्टेट, और राज्य के सभी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वहाँ असेंबली में लिए जाते थे। दिस वाज परहैप्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन गवर्नेंस। और इस प्रकार से डायरेक्टली लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते थे। बट स्लेव्स, वीमेन एंड पीपल ऑफ अदर स्टेट लिविंग इन एथेंस वर नॉट अ
part of the assembly and did not participate in the decision making। और इस प्रकार से जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग थी, यानी कि जो वीमेन होती थी, औरतें, या जो गुलाम होते थे, या जो लोग उस राज्य में दूसरे राज्यों के लोग होते थे, वो असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे और ना ही कोई डिसीजन वहाँ ले पाते थे। कौन कौन नहीं लेता था वहाँ? स्लेव, वीमेन एंड पीपल ऑफ अदर स्टेट। नाउ सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी डेवलप्ड फर्दर इन रोमन एम्पायर एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। और इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है आगे रोमन एम्पायर में डेवलप्ड हुई और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड असेंबली ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स कॉल द सीनेट। अब जो असेंबली, जो मुख्य लोगों की असेंबली थी, उसको सीनेट के नाम से जाना गया। was formed and people elected consuls। कंसल्स का मतलब होता है एम्बेसडर, जो दूत होते हैं, टू रन द गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर टर्म। एक साल में जो कंसल्स होते थे उनको चूज़ किया जाता था, एम्बेसडर्स चूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म, और उस संघवाद के युग में, दैट केम आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद या रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद जो फ्यूडलिज्म आई, डेमोक्रेसी वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। उसमें डेमोक्रेसी को भुला दिया गया। इट वॉज एन एज ऑफ वायलेंस। अब जो एज फ्यूडलिज्म की एज आई थी वो एक ऐसा एज था जिसमें वायलेंस थी, वार्स एंड द टायरनी ऑफ द किंग्स। टायरनी मीन्स क्रूएल्टी ऑफ द किंग। राजाओं की क्रूएल्टी थी, वायलेंस, हिंसा थी और युद्ध थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन in the history of democracy was the singing of the Magna Carta in 1215 century या कॉमन एरा। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था जिसने एक मील के पत्थर का काम किया था भारतीय जो संसार का इतिहास था, उसमें ये था कि मैग्ना कार्टा सबसे पहले 1215 ईस्वी में गाया गया या सुनाया गया सीनेट में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टीज़ ऑफ इंग्लैंड। और इस मैग्ना कार्टा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज़ ऑफ इंग्लैंड। द मैग्ना कार्टा वाज ए डॉक्यूमेंट। अब मैग्ना कार्टा होता क्या है? व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा वाज ए डॉक्यूमेंट। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है दैट द किंग वाज मेड टू साइन बाय ए ग्रुप ऑफ नोबल्स, जिसमें राजा कुछ नोट्स लिख करके दूसरे जो अच्छे पर्सनस हैं या दूसरे जो इलेक्टेड पर्सनस हैं, सिलेक्टेड पर्सनस हैं राजा के द्वारा, उनके साइन कराता है और वो रूल्स सभी को मान्य होते हैं। तो व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इज़ ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द सिग्नेचर ऑफ द किंग एंड द नोबल्स। इट रेस्ट्रिक्टेड द प्रिविलेजेस ऑफ द किंग। अब जो मैग्ना कार्टा है वो किंग की जो प्रिविलेजेस होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करता है, उनको कम करता है। एंड इस्टेब्लिश दैट द किंग कुड ओनली पनिश पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। और इस प्रकार से जो नियम बनाए गए हैं उन पर जो काम है वो किया जाता है। इवन द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट अबव द लॉ। यहाँ तक कि जो लॉ बनाए गए हैं उनमें किंग खुद भी आता है, उनको खुद भी, किंग को खुद भी फॉलो करना पड़ता है। द नोबल्स कुड पनिश हिम इफ़ ही ब्रोक द लॉ। अगर किसी राजा किसी रूल को ब्रेक करता है तो नोबल्स के द्वारा उसको भी पनिश किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेटअप इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। जो अमेरिकन युद्ध हुआ था स्वतंत्रता के लिए, वो भी संसार के इतिहास में डेमोक्रेसी के लिए ही हुआ था। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्की। मोनार्की तो आप लोग जानते हो, एक ऐसी सरकार जहाँ पर राजा या रानी का शासन होता है। ए कंट्री ऑन विच द किंग और क्वीन रूल्ड। तो वहाँ पर मोनार्की को हटाने के लिए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए अमेरिका में भी युद्ध हुआ था। और नॉर्थ अमेरिका की जो उत्तरी अमेरिका के जो पार्ट थे उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध अभियान छेड़ा। इन 1776 द कॉलोनीज अडॉप्टेड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन। और इस प्रकार से 1776 में जो कॉलोनीज़ थी, उन्होंने ये, कॉलोनीज़ का मतलब कई कंट्रीज़ मिल करके किसी दूसरी कंट्रीज़ के खिलाफ जो उन्होंने एक संगठन बना रखा था उसको कॉलोनी कहा गया। तो उसमें डॉक्यूमेंट में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए 1776 में एक उद्घोषणा की।
विच स्टार्टेड दैट द कॉलोनीज़ वर नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें ये बताया गया कि अब जो कॉलोनीज़ हैं वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में वर्क नहीं करेंगी, उनके अंडर में नहीं रहेंगी। एंड दे वर फॉर्मिंग अ न्यू सॉवरेन स्टेट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इस प्रकार से एक नया संप्रभुत्व देश स्थापित करेंगी जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।